میں پاکستان کے بعد بھارت سے ہجرت کر کے آنے والوں کی یادیں آج 73 سال بعد بھی تازہ ہیں۔ مہاجرین کے قافلے کس طرح آگ اور خون سے گزر کر پاکستان پہنچے اور انہیں اس سفر میں کن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ تفصیلات جانیں گے طاہر جویہ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ تقسیم ہندوستان کے نتیجے میں دنیا کی سب سے بڑی انسانی ہجرت ہوئی۔ انسانی اور اخلاقی قدریں قصہ ماضی بن کر رہ گئیں۔ سالہ سال سے اکٹھے رہنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ بہاولپور کے تاریخی گلی کوچوں میں آزادی کی یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ غلام محمد کا خاندان شمالی پنجاب کے شہر فرید کوٹ سے پاکستان کے لیے روانہ ہوا۔ غلام محمد کا کہنا تھا کہ ہر طرف دنگا فساد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ میری عمر ادوں 11 سال تھی، کوئی 11-12 میل وہ قافلہ سیگا، بہت جی قتل و غارت کی انہوں نے۔ میری والدہ سی انہوں بھی انہوں نے مار کے بے ہوش کر کے سٹ گئی سی۔ دادی میری سی وہ رستے دے وچ وہ کہندی بھی سارے مار کھپ گئے، میں ہن کلی کی کراں گے، اسے نہر جا کے ڈبیاں مار لگ گئی، کتے جیوندے بندے تو کتے مریا جاندا۔ غلام محمد نے ہجرت کی غمگین یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا کہ ہجرت کا قافلہ 12 میل طویل تھا۔ سکھوں اور بلوائیوں نے کئی حملے کیے۔ قتل و غارت اور والدہ کے غم سے نڈھال دادی اماں نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ ہجرت کے دوران خون کی ندیاں بہائیں گئیں۔ پاکستان پہنچ کر تمام مظالم بھول گئے۔ اج دن بیچارے نوں کی پتا انہاں نوں جو آزادی کیویں لئی ہے، ادوں لئی ہے تو قربانیاں دے کے لئی ہے، ایویں تو نہیں ملی، وہ سستی تو نہیں ملی۔ سانوں کلمہ بھی نہیں سستا ملیا، یہ بھی تسی سوچو نا، بہت مشکل ہوئی ہے، بہت ہی مشکل ہوئی ہے۔ اج دی پیداوار جڑی ہے نا، یہ نہیں ہونی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہن بھی وہ مصیبت آ جائے نا، اللہ کرے نہ آوے، جی آ بھی جائے تو ہن نہیں آپ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہجرت کرنے والے مسلمان خاندانوں نے بلا شبہ مصیبتوں کے پہاڑ برداشت کیے۔ غلام محمد کا کہنا تھا کہ کلمہ طیبہ کی گونج میں ہجرت کی غمگین داستانیں بھول گئیں۔ ہمیں نہ آزادی سستی ملی، نہ ہی کلمہ سستا ملا۔ آج کے نوجوان کو پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویہ، روہی، بہاولپور۔ کریا گاؤں گاؤں جشن آزادی کی تیاریاں، سجاوٹی اشیاء کے سٹالز پر رش۔ پورے خانپور شہر میں سبز ہلالی پرچم لہرا دیے گئے۔ کبیروالا کے مکینوں نے قومی پرچم، بیجز اور دیگر سامان کی خریداری مکمل کر لی۔ یزمان کے شہری ایک جھنڈے کے ساتھ ایک پودا لگانے کے لیے پرعزم ہے۔ خانپور میونسپل کمیٹی نے جشن آزادی کی تیاریاں مکمل کر لی۔ پورے شہر میں سبز ہلالی پرچم لہرانے لگے۔ چیف آفیسر نے کہا کہ رات 12 بجے کیک کاٹ کر آزادی کے جشن کا آغاز کیا جائے گا۔ میونسپل کمیٹی خانپور جو ہے نا 14 اگست کی تیاریاں زور شور سے کر رہی ہے، اور ہمارے تمام افیسران اور ہمارے اہلکاران جو ہے نا وہ رات دن محنت کر رہے ہیں۔ ہم نے پورے شہر کو جھنڈوں سے سجا دیا ہے، بلدیہ کی ہم نے لائٹنگ شائٹنگ کروا دی ہے، قومی پرچم لگا دیے ہیں، اور تمام پروگرام اپنے جو ہم نے ترتیب دیے ہوئے ہیں، جیسے سپورٹس گالا ہے وہ ریلوے گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، اور اسٹیڈیم میں آج شام کو ہماری جو گلوکار ہیں وہ قومی نغمے گائیں گے۔ لیاقت پور کے دیہاتوں میں بھی آزادی کا جشن منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کبیر خان کے مکینوں نے قومی پرچم، بیجز اور دیگر سامان کی خریداری مکمل کر لی۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور یہ ہمارے بزرگوں کی محنت کا نتیجہ، انہوں نے لازوال قربانیوں کی وجہ سے یہ پاکستان پایا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک منتوں کی کوششوں کی وجہ سے یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ اور اس کی جو جشن آزادی کے موقع پر ہم تقریباً 10 اگست سے شروع کرتے ہیں اور اپنی تیاری کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ اور خان بلا شہر ہے ہمارے یہاں، تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں سے ہم جا کے اپنے خرچے پر جا کے یہ بیجز اور جھنڈے وغیرہ لے آتے ہیں، اور ان بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کیسے وجود میں ہے اور ہم نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یزمان میں بھی 76ویں یوم آزادی کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ سجاوٹی اشیاء کے سٹالز پر رش ہے۔ شہری جھنڈے، بیجز، آزادی شرٹس خریدنے میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ پاکستان کو سرسبز بنانے کے لیے شجرکاری ضروری ہے۔ ہر پاکستانی جھنڈے کے ساتھ ایک پودا بھی ضرور لگائے۔ اے وطن تم پر دل و جان بھی قربان، کریا کریا بستی بستی 74ویں یوم آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ جامپور، چوک سرور، شہید کروڑ لال عیسن اور ہارون آباد کے بازاروں گلیوں میں جگہ جگہ سٹال سج گئے ہیں۔ سبز ہلالی پرچموں، بیجز، چوڑیوں، سبز اور سفید کپڑوں کی خریداری جاری ہے۔
जौनपुर में जश्न आज़ादी मनाने के लिए अवाम पुरजोश, शाहराहों, चौराहों, गली और बाजारों में स्टॉल सज गए। शहरी झंडे, बैजेस, एनके और दिगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। शहरियों का कहना था कि जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाएंगे। पहले से बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा जोश व खरोश है लोगों में, बहुत ज्यादा जोर के मना रहे हैं। इतनी कभी नहीं मनाई जितनी इस दफा मना रहे हैं। 14 अगस्त इंशाल्लाह हम इस दफा पुरजोश तरीके से मनाएंगे और हम पहले से ज़्यादा इस दफ़ा तरीक़ा बैजेस, रुमाल, अपने कैप्स खरीद रहे हैं और तकरीबन इस वक्त हमारे पास हमने बहुत सारी खरीदारी की हुई है। ये कैप्स भी हैं और गुज़िश्ता सालों से बनिस्बत इस दफ़ा ज़्यादा पुरजोश तरीके से 14 अगस्त मनाएंगे इंशाल्लाह। चौक सरवर शहीद में पाकिस्तानी परचमों के स्टॉल सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि अर्ज़े पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ झंडे खरीदने आए हुए हैं। हम स्कूल में लगा कर लेके जाएंगे और घर में लेके जाएंगे, झंडियाँ लगाएंगे। और हम पिछले साल भी ऐसे मनाते हैं, इस साल भी ऐसे मना रहे हैं। हम भी झंडियाँ लेने इधर आए हैं, घर भी लगाएंगे, स्कूल भी लगाएंगे, झंडे भी लेते हैं। हर साल ऐसे मनाते हैं। करोड़ लाल ईसन में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां मुकम्मल। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। जगह जगह कौमी परचम, झंडियों और बैजेस स्टॉल सज गए। शहरियों का कहना था कि 14 अगस्त भरपूर जोश व खरोश से मनाएंगे। इंशाल्लाह ये बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया हमने और इंशाल्लाह इसको बढ़ चढ़ के हर साल की तरह जो है ना पुरजोश और जोश व खरोश से मनाएंगे इंशाल्लाह। और हमारी भी चार दोस्तों से इल्तमास भी आप भी पाकिस्तान की खुशी में भरपूर शामिल हो और इंशाल्लाह अल्लाह पाक कायम दायम रखे पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिंदाबाद। हारूनाबाद में भी जश्न आज़ादी पर हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है। कौमी परचम, झंडियों की फरोख्त जारी है। दूसरी जानिब बच्चों का कहना था कि हम झंडियों से घर सजाएंगे, जबकि शहरियों का कहना था कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में बच्चों के साथ बैजेस और झंडे खरीद रहे हैं। जश्न आज़ादी के रंग बच्चों के संग मुल्तान में आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। छोटे बच्चों का बड़ा जज्बा, नन्हे बच्चे दोस्तों के हमरा मिले नगमे तैयार करने में मसरूफ़ हैं। शहर ओलिया में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। नन्हे बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहे। कौमी परचम के रंग चेहरों पर पेंट करवा रहे हैं, जबकि नन्ही परियां टैबलोस की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मैंने आज अपने चेहरे पे पेंटिंग करवाई है ताकि मैं कल 14 अगस्त अच्छे से बना सकूं। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हम बहुत सारी डेकोरेशंस भी कर रहे हैं। अभी से ये कहत कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें, अच्छे से पढ़ें। बच्चों का कहना था कि जश्न आज़ादी के लिए चेहरे पर कौमी परचम पेंट करवा रहे हैं। ये इसने मतलब जैसे पेंट होता है, ये इसने उससे और ग्लिटर कलर से और इसने स्टिक से बनाई है। जो झंडियाँ नीचे गिर जाती हैं, ये हमारे पाकिस्तान का अदब है कि हम अपने झंडे को लहराते रखेंगे। इन झंडियों को भी हम ना इकट्ठे जमा करेंगे जहाँ जहाँ एरिया में हम जा पहुँचेंगे। बच्चों का कहना था कि इस बार इन्होंने अहद किया है कि सड़कों पर झंडियाँ नहीं गिरने देंगे। अपने प्यारे परचम की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। कैमरामैन जैन के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। बहावलपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गई हैं। खवातीन, बच्चे और बड़े बाजारों में पहुंच गए। सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर रश है। छोटी बच्चियां सब्ज और सफ़ेद रंग की चूड़ियां खरीदने में मसरूफ़ हैं, जबकि बच्चे चेहरों पर कौमी परचम के रंग पेंट करवाकर खुश हो रहे हैं। बहावलपुर में हर कोई अपने अपने अंदाज में आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ है। खवातीन और छोटी बच्चियां अपने लिए शॉपिंग कर रही हैं। खवातीन बच्चों के लिए सफ़ेद और सब्ज रंग के कपड़े खरीद रही हैं। जी खुशी मना रहे हैं 14 अगस्त की। ठीक है। जोशो खरोश से मना रहे हैं। बच्चों की पहना रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं पहन रही? खुद भी पहनेंगे। अभी वो उधर बैठे हुए ना, अभी भाई बना रहे हैं। ठीक है। तो फिर अब हमारी बारी आएगी, हम भी पहन लेंगे। जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए छोटी बच्चियां सब्ज और सफेद रंग की चूड़ियां खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि बच्चे चेहरों पर कौमी परचम के रंग पेंट करवाकर खुश और बड़े पाकिस्तानी परचम खरीद रहे हैं। खवातीन का कहना था कि यौम आज़ादी की खुशियों का असल मजा बच्चों की फरमाइश पूरी करने में ही है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। गोदा में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। छोटे बच्चों का जज्बा दीदनी। बच्चियां सब्ज चूड़ियां, कैचर, बैजेस, घड़ियां और ब्रेसलेट खरीदने में मसरूफ हैं। कहती हैं आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। शाहीनों की शहर सरगोदा में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। जगह जगह लगे स्टॉल्स पर शहरियों का रश है। बच्चे बड़े सभी पुरजोश हैं, जबकि बच्चियों का जज्बा भी काबिले दीदनी है। जी, ये बच्चों ने फरमाइश की है कि 14 के हम भरपूर तरीके से मनाएंगे, तो उस हवाले से आए हैं बच्चों के लिए 14 अगस्त
क्योंकि ये हमारा आज़ादी का दिन है। ज़िंदा कौमें जो होती हैं वो अपनी आज़ादी का दिन बड़े अच्छे तरीके से मनाती हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि हम एक आज़ाद मुल्क में जो है ना सांस ले रहे हैं। तो हमें इसका आगाज़ जो है सुबह नमाज पढ़कर कुरान ख्वानी और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि हमें ये आज़ादी की ये जो सुबह नसीब हुई है। जश्न आजादी के मौका पर शाहीनों ने अपने शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया है। बच्चे बड़े सभी पुरजोश हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआओं का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन मोहम्मद नासिर के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही न्यूज, सरगोदा। मुल्क भर की तरह शुजाबाद के शहरी यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। शहरियों की बड़ी तादाद कौमी परचम और दीगर अशिया की खरीदारी कर रही है। शुजाबाद के शहरी यौम आज़ादी की तैयारियां अपने अपने अंदाज से कर रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉल्स पर खूबसूरत टोपियां, बैजेस, झंडे और दीगर एशिया खरीद रहे हैं। रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि यौम आज़ादी पर घरों को खूबसूरत अंदाज से सजाएंगे। झंडे वगैरह खरीदे हैं और कुछ बच्चियों के लिए चूड़ियाँ खरीदी हैं, क्योंकि ये 14 अगस्त का दिन है और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि भाई ये 14 अगस्त का दिन हमें कैसे हासिल हुआ और कितनी कुर्बानियों से हमें आज़ादी मिली। शहरियों का कहना था कि बच्चों की फरमाइश होती है कि 14 अगस्त साल में एक बार आता है, इसलिए चूड़ियाँ और कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। मैं अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। जनाब, हम एक ज़िंदा कौम हैं, इसे हमारे जोश व खरोश, हमारे बच्चे हम आज़ादी के लिए भरपूर खुशी में मना रहे हैं। पाकिस्तान का हर शहरी यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाने में मसरूफ है, क्योंकि हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाती हैं। कैमरामैन टीम के हमरा मुसव्विर अंसारी, रोही न्यूज़, शुजाबाद। तोंसा शरीफ में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए। बच्चे, जवान और बूढ़े कौमी परचम और झंडियां खरीदने में मसरूफ हैं। मुल्क भर की तरह तोंसा शरीफ में भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। बच्चों के साथ वालिदैन भी खरीदारी करने में मसरूफ हैं। रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर साल की तरह जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने के लिए पुरज़्म है। स्टॉल्स पर कौमी परचम, रंगारंग झंडियाँ, चूड़ियाँ, बैजेस, स्टिकर समेत दीगर सामान खरीद रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि रात को घरों पर चरागा करेंगे और जश्न आज़ादी को जोशो खरोश से मनाएंगे। हम झंडे लेने धूमधाम से 14 अगस्त मनाएंगे। हमारी आज़ादी का दिन है, इस वजह से हम सारा कुछ झंडे लेने आए हैं, अपने वालिदैन के साथ सारा कुछ लेने आए हैं। सर, हम जोशो खरोश से आज़ादी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अपने घरों को सजाया हुआ है। पूरे तोंसा शरीफ में खुशी से मना रहे हैं। आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा कौमें जश्न आज़ादी बेहतरीन अंदाज में जोशो खरोश से मनाते हैं, जबकि यौम आज़ादी मनाने का मकसद नई नस्ल को बताना है कि अलहदा वतन कितनी मुश्किलों से हासिल किया गया था। बच्चों के जोशो खरोश से लगता है हमारा मुस्तकबिल रोशन है। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोही, तोंसा शरीफ। यहाँ आपको बताएं, मुल्तान की लाइब्रेरी में जश्न आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। निजी अकेडमी के ज़रिए एहतमाम इनामात तकसीम करने का एहतमाम भी किया गया। जश्न आज़ादी के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मुल्तान में तकरीब का इनाकाद किया गया। समाजी शख्सियात, प्रोफेसर और तुलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों ने तकारीर और मिली नगमे पेश किए। भागम भाग के दौर में, इंटरनेट के दौर में ऐसा लगा जा रहा है कि बच्चे हमारी रवायात को भूलते जा रहे हैं, तो उनमें उस सब चीज़ों को, उस जज्बे को, अपने वतन के लिए मोहब्बत को उजागर करने के लिए हमने इस तकरीब का इनाकाद किया। यौम आज़ादी की मुनासबत से नन्हे बच्चों ने खूबसूरत टैबलोस पेश किए। हाज़रीन ने खूब दाद दी। निजी अकेडमी के ज़रिए तमाम स्पोकन इंग्लिश कोर्स मुकम्मल करने वाले तुलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। हमने मिली नगमे और नेशनल सॉन्ग्स गाए हैं और परफॉर्मेंस भी की है। तो इसका मकसद ये था कि हम बच्चों में बेदार करें कि आज़ादी किस तरह मनाई जाती है और उनमें ये जज्बा पैदा हो कि हम आज़ाद कौम हैं, हमने किसी से डर के नहीं रहना। तकरीब के आखिर में वतन अजीज़ के असूल के लिए दी गई कुर्बानियों को भी याद किया गया। कैमरामैन हसीब के साथ सुहीरा, तारिक, मुल्तान। जहानिया हाउसिंग स्कीम के निजी स्कूल में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब। बच्चों ने टैबलो, मिली नगमे और खाके पेश किए, जिस पर हाज़रीन दाद दिए बगैर न रह सके। जहानिया के निजी स्कूल में 14 अगस्त की मुनासबत से जश्न आज़ादी भरपूर तरीके मनाने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों ने मिली नगमों पर टैबलो पेश किया। इस दौरान बच्चों ने इस्लाम की सरबुलंदी और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए खाके भी पेश किए। प्रिंसिपल शमशुरा कुलांग और असातिज़ा ने बच्चों को बड़ी मेहनत और लगन से तैयारियां करवाई। बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर शायकीन ने खूब दाद दी। प्रिंसिपल शमशुरा कुलांग का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि वतन अजीज के असूल के लिए
हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां दी। आज़ादी बड़ी नेमत है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। स्कूल टीचर इकरा का कहना था कि हमें अपने बच्चों को क़याम पाकिस्तान और इस्लामी तारीख से ज़रूर रोशनास कराना चाहिए। इकरा इस्लामिया स्कूल में जो है 14 अगस्त के हवाले से एक फंक्शन था जिसको हमने इनकाद किया, जिसमें बच्चों ने भरपूर तरीके से जो है हिस्सा लिया, टैब्लो पेश किए, मिली नगमे पेश किए और स्कूल को जो है बहुत अच्छे अंदाज में सजाया। और बच्चों को जो है हमने मुकाबले भी इनके करवाए हैं जिसमें डब्ल्यू के और दूसरे खेल के भी कुछ मुकाबले थे और बच्चों ने बड़े अच्छे अंदाज में वो खेल जो है खेले हैं और इनको आखिर में हमने इनामात भी दिए हैं। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इस साल भी ये स्कूल ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म किया है। बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, परफॉर्मेंसेस की हैं। तो बाकी एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं लेकिन स्कूल का ये 14 अगस्त के हवाले से जो है वो बहुत अच्छा फंक्शन जो है वो मुनक्किद किया जाता है। तो बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, मेलोडियस थी। स्टाफ मेंबर्स ने और स्कूल की इंतज़ामिया ने बहुत जो है वो मेहनत की है बच्चों पर। अगस्त के हवाले से एक फंक्शन है जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। हमारे स्कूल यानी इकरा इस्लामिया ने बहुत अच्छा सेटअप तैयार किया है। हमने झंडियाँ लगाई हैं, झंडे लगाए हैं और हमारे उस्ताद कराम ने भी हमारी बहुत मदद की है। आज़ादी बड़ी नेमत है। पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों के नतीजे में मारूफ वजूद में आया। हमें अपने वतन की कदर करनी चाहिए। अपने अपने शोबा में ईमानदारी और मेहनत से काम करके वतन अजीज को तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज़, जहानिया। मुल्तान में मुस्लिम विमेन लीग के ज़रिए इहतमाम नज़रिया पाकिस्तान रैली, बच्चों और ख़वातीन की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान प्लेट में नहीं मिला, मुल्क की तरक्की में सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। जश्न आज़ादी के मौके पे मुस्लिम वुमेन लीग मुल्तान के ज़ेरे तमाम नज़रिया पाकिस्तान रैली निकाली गई। शुरका ने तहरीक आज़ादी के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। रैली में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस रैली का मकसद तहरीक पाकिस्तान के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करना है और आइंदा नस्ल को ये पैगाम देना है कि हमने अपने अबाओं और अपने बड़ों की बातों को याद रखना है कि उन्होंने किस तरह से कुर्बानियाँ दी और ये पाकिस्तान कुर्बानियों से बना है, ये हमें प्लेट में रखकर पेश नहीं किया गया। ख़वातीन का कहना था कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, हमें ये मुल्क प्लेट में नहीं मिला। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। आज हम लोग तहरीक पाकिस्तान के लिए बाहर निकले हैं। हमें अपने बड़ों की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें बैंड बाजे लेके बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें घर बैठ के इबादत करनी चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे बड़ों ने किस तरह से पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी थी। ख़वातीन का मज़ीद कहना था कि 14 अगस्त के दिन बैंड बाजे नहीं बल्कि कुरान मजीद की तिलावत करें। हमें अपने बड़ों की कुर्बानियों को याद करना चाहिए। कैमरामैन जैन के साथ अलिशवा आसिफ, मुल्तान। रहीम यार खान में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ख़वातीन विंग के ज़रिए एहतमाम जश्न आज़ादी रैली, सबसे लाली परचम थामे ख़वातीन और बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना, हमें इस्लामी निज़ाम के ज़रिए तरक्की लाना होगी। पाकिस्तान पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। रहीम यार खान में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ख़वातीन विंग के ज़रिए एहतमाम यौम आज़ादी की मुनासबत से रैली निकाली गई। शुरका ने कौमी परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। ख़वातीन रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया, इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। नजरिए से इनहराफ करने वालों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा है और इसी कलमा पर ही मुल्क यकजा और मजबूत होगा। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और इसका अंदाज़ा उन लोगों को होता है जिनको ये नेमत नहीं मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। इस आज़ादी के पीछे बहुत से कुर्बानियों का वलवला अंगेज़ कुर्बानियाँ हैं जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतों का बहुत बड़ा किरदार है। जश्न आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें मिली है। मैं चाहती हूँ ये आज़ादी की हमें कदर करनी चाहिए और हमें जैसे इस पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, तो हमें इसी तरह इसमें ज़िंदगी भी गुजारनी चाहिए जो कि आसान हो सके। ख़वातीन रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें कौमी मुफाद को तरजीह देना होगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान।
शहर ओलिया में भी यौम आज़ादी का जश्न पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम 14 अगस्त की मुनासबत से रैली, शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुल्तान में सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की क़यादत में प्रेस क्लब से SP चौक तक रैली निकाली गई। इस मौके पर शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का कहना था कि कुदरत ने हमें बहुत बड़ी आज़ादी दी है और हम इसका जश्न मना रहे हैं। अल्लाह ने हमें ये आज़ादी दी है और आज़ादी का पूछना है तो आप कश्मीर वालों से पूछें, आप इंडिया वालों से पूछें, आप जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं, आप फ़लस्तीन वालों से पूछें। कुदरत ने हमें ये बहुत बड़ी नेमत दी है आज़ादी की और उसका आज हम जश्न मना रहे हैं। रैली के शुरका का कहना था कि जिंदा कौमें अपने त्यौहार को बावकार तरीके से मनाती हैं। जिंदा कौमें अपने त्यौहार को इसी तरह बावकार तरीके से मनाती हैं। आज हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने इस कौमी त्यौहार को जिस जज्बे के साथ मना रहा है, ये इस बात की अलामत है कि पूरी कौम मुत्तहिद है और अपने पाकिस्तान की बका के लिए, दिफा के लिए और सलामती के लिए इसी तरह दुनिया भर को पैगाम देते रहेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर SP चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। रहीम खान में अली बाजवा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मुकाबला इकबाल स्पोर्ट्स क्लब ने 1 गोल से जीत लिया। मेहमान खुसूसी मारूफ सियासतदान रहनुमा चौधरी अब्दुल समद सुल्तान बंदेशा ने इनामात तकसीम किए। रहीम खान में नवा सालाना अली बाजवा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच इकबाल स्पोर्ट्स क्लब और जंग सोलंकी जमालुद्दीन वाली की टीमों के माबैन खेला गया। खिलाड़ियों ने मुखालिफ टीम के गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए। बिलाखिर इकबाल स्पोर्ट्स की टीम ने जंग सोलंकी जमालुद्दीन वाली की टीम को 1 गोल से शिकस्त देकर चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मारूफ सियासतदान चौधरी अब्दुल समद सुल्तान बंदेशा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सियासी रहनुमा शेख जावेद अहमद, मारूफ फुटबॉलर मलिक आबद अवान, आसिम सिकंदर बाजवा, आदिल बाजवा समेत शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। मेहमानों ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चौधरी अब्दुल समद सुल्तान बंदेशा ने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और टूर्नामेंट करवाने पर फुटबॉल कमेटी की काविशों को खूब सराहा। जो ग्राउंड आबाद होते हैं, वो अस्पताल जो गैर आबाद होते हैं, ये हमारा 9वां जो हर साल ये इवेंट होता है फुटबॉल टूर्नामेंट जो है अली बाजवा मेमोरियल के नाम से। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और तमाम जो हमारे सरकर्दा शख्सियात हैं, हमारी सियासी शख्सियात हैं और बाअसर शख्सियात हैं, उनको इनके नौजवानों की भरपूर जो है उनके साथ ताउन करना चाहिए और इसको एक इंतज़ामी सतह पर भी तमाम इन ग्राउंडों में इनको ग्राउंड भी देने चाहिए। उनके अंदर इन प्रोग्रामों को होना चाहिए, फुटबॉल के फ्लड लाइट टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट। और इस तमाम इवेंट को कामयाब कराने में हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा चौधरी समद बंदेशा साहब का स्पेशल इसमें हाथ है। हमें ग्राउंड की परमिशन इन लोगों के नाते मिलती है और ये हमारा फ़ख्र है। इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, हर लिहाज, हर स्पोर्ट्स में इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। हम इनके मशकूर हैं। मारूफ सियासतदान चौधरी अब्दुल समद सुल्तान बंदेशा का कहना था कि इंतजामिया को नया टैलेंट सामने लाने के लिए खेलों के मैदान आबाद रखने चाहिए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। इस रिपोर्ट के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।